Yes, we have started the ASP.NET State Management. Okay, there are different techniques for managing this state. Okay, lot of times we have revised all these topics, so now no need to again revise. We will continue with the next topic. Okay, there are two techniques we have already covered: view state management techniques and cookies we have covered. Okay, the cookies and view management techniques. Okay, cookie and view state management techniques, both techniques will store the data of the control or page and display the data in the same page. Okay, now in the previous lecture we have started the query string, but practical is remaining. Today we will do the practical for same query string. The query string is also used to store the page data or control data. Okay, all are the state management techniques. What is the state management techniques means? Kya? To store the controls data or a page data. Okay, to store the controls data and page data. Okay, now query string is also for the same purpose. Okay, data store करने के लिए we will use the query string, but now we can display that stored data in the different pages. Okay, in the different pages we can display that stored data query string. Okay, view state से भी हमने control का data store किया, cookies से भी हमने controls का data store किया, but in both techniques we can display that stored data into the same page only. Okay, एक ही पेज पे, same page पे जहाँ पे हम store, जो पेज में हम लोग स्टोर करे थे वही पेज में हमने डेटा रिटर्न करवाया. We cannot display the stored data into the next page, another page. Okay, so using query string we can display that stored data in the another pages. So for that we have to create the query string. अगर हमको query string create करना है, उसके लिए how to create query string, there is some syntax is that. Okay, view state create करने के लिए we have to write view state ब्रैकेट में name view state का. ओके, इक्वल्स टू करके जो भी उसको आपको देना है कंट्रोल्स नेम, असाइन दैट कंट्रोल्स नेम टू द व्यू स्टेट. एंड कुकीज क्रिएट करने के लिए यू हैव टू राइट द रिस्पांस डॉट कुकीज, एंड कुकीज को कॉल करने के लिए यू हैव टू राइट द रिक्वेस्ट डॉट कुकीज. ओके, सो कुकीज एंड व्यू स्टेट का सिंटैक्स यू हैव टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट इज द क्वेरी स्ट्रिंग. तो क्वेरी स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ two parts, field and value, and each of pair separated by the ampersand symbol. We will see now. The question mark in query string indicates at the beginning of query string and its value. Okay, there is a limit on query string length, hence query string cannot be used to send very long data. Okay, query string में हम लोग long data send नहीं कर सकते. Okay, and जो data हम लोग transfer करें from one page to another page, okay, तो वो visible होगा to the users को. Why? Because वो URL through transfer होगा. कैसे transfer होगा? URL through transfer होगा. Query string are visible to users. Okay, visible to user. Why? Because वो URL through pass होगा. Hence should not be used to send sensitive information such as username and password unless encrypted. अगर हम लोग encrypt किया तो कोई issue नहीं. encrypt नहीं करे, directly pass करे तो security issue will be there. The retrieve the query string value use request object. Okay, request object हमको return करना है. Example directly हम लोग example ही perform करेंगे आज. ठीक है, theory we have covered in the last lecture. Okay. Okay, now we have to design the page like this. Okay, this is a one page. ये one page है. Okay, in that page we have stored the controls data. Text box का data हम लोग store करवा रहे हैं. Name and last name जो भी आपको करवाना है, we can store the controls data. And when we will click on the submit button, so this data जो है ना हमने store करवाया, that data will be displayed in the another page. See, default 2.aspx ये second page है, ये first page है. First page में हमने data store करवाया, and second page में उसको हम लोग क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं. सी डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स सेकंड पेज में हम लोग डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं. तो जब सेकंड पेज में डेटा डिस्प्ले करवाएंगे तो वो क्वेरी स्ट्रिंग जो हमने क्रिएट किया था वो यूआरएल में भी दिखेगा. क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग में जो डेटा हमने पास किया वो यूआरएल में भी दिखेगा. सो इट इज नॉट सिक्योर नहीं है. तो यू कैन नॉट पास दी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. पासवर्ड वगैरह आप नहीं ट्रांसफर करवा सकते वन पेज टू सेकंड पेज, क्योंकि वो सबको दिखेगा. ओके, अनदर इंफॉर्मेशन यू कैन ट्रांसफर. तो दिस इज अ क्वेरी स्ट्रिंग. तो हमको ये परफॉर्म करना है, तो वी हैव टू राइट कोडिंग इनटू टू पेजेस. हमको दो पेजेस में कोडिंग करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट पेज के जहाँ पे हमको डेटा स्टोर करना है. ओके, इन दैट पेज वी विल क्रिएट द क्वेरी स्ट्रिंग. ठीक है, हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग कहाँ पे क्रिएट करेंगे कि जहाँ पे हमको वेयर द यूजर विल एंटर द डेटा. यूजर जहाँ पे डेटा एंटर करेगा टेक्स्ट बॉक्स में या तो कोई भी कंट्रोल में, वहाँ पे वो पेज पे हमको क्या करना है, वो डेटा स्टोर करवाना है. ओके, व्हेन यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन पे क्लिक करेगा यूजर, तो ये जो डेटा है नेम एंड लास्ट नेम वो क्वेरी स्ट्रिंग में स्टोर हो जाना चाहिए एंड नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए. ओके, तो सबमिट बटन के क्लिक इवेंट में वी विल राइट द क्वेरी स्ट्रिंग. ओके,
क्वेरी स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट करेंगे सबमिट बटन की क्लिक इवेंट में, एंड और लिखेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो। मतलब यहाँ पे हम लोग दो चीजें लिखेंगे इन द बटन क्लिक इवेंट में। द फर्स्ट इज क्रिएटिंग फॉर क्रिएटिंग द क्वेरी स्ट्रिंग, एंड द सेकंड क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट होने के बाद, मतलब डेटा क्वेरी स्ट्रिंग में स्टोर होने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाना है। ओके, देन आफ्टर जब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आएंगे, ओके, व्हेन वी कम ऑन द नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में क्या होना चाहिए, जो डेटा हमने प्रीवियस पेज में कंट्रोल, प्रीवियस पेज के कंट्रोल में स्टोर किया था वो डेटा डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पेज है, ठीक है, वो पेज का पेज लोड इवेंट में कहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पेज लोड इवेंट, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बटन वगैरह है नहीं, तो जैसे पेज रन होगा वैसे ही तुरंत क्या हो जाना चाहिए, क्वेरी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाना चाहिए। इन सेकंड पेज का पेज लोड इवेंट में वी विल कॉल दैट क्वेरी स्ट्रिंग डेटा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग का डेटा हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। तो सी दिस इज द फर्स्ट पेज को उन्होंने क्या लिखा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ओके, एंड दिस इज अ क्वेरी स्ट्रिंग का सिंटैक्स, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, तो आपको जो क्वेरी स्ट्रिंग जो क्रिएट करना है, ओके, क्वेरी स्ट्रिंग का जो सिंटैक्स है वो कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द पेज नेम, जहाँ पे आपको लेके जाना है, डिस्प्ले करवाना है जो पेज में, उसका नेम, देन फर्स्ट नेम, ओके, देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है मतलब यहाँ से क्वेरी स्ट्रिंग इज स्टार्टेड, तो यू हैव टू राइट क्वेश्चन मार्क, देन फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जो भी आपको वेरिएबल नेम देना है फॉर द क्वेरी स्ट्रिंग के लिए, हमको टू नेम्स हमको स्टोर करवाना है, तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम, फर्स्ट कंट्रोल का डेटा स्टोर करवाना, तो यू कैन राइट एनी वेरिएबल नेम, जैसे हम लोग यूज स्टेट में लिख रहे थे, तो ये यू कैन गिव एनी नेम। जिन्होंने फर्स्ट नेम लिखा है इक्वल्स टू फर्स्ट नेम वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा। ओके, क्लियर। देन एम परसेंट, ओके, एम परसेंट मतलब क्या, नाउ हमको सेकंड कंट्रोल का डेटा स्टोर करवाना है, तो एम परसेंट लास्ट नेम इक्वल्स टू, ओके, जो भी वेरिएबल नेम देना दे दो, इक्वल्स टू सेकंड कंट्रोल का नेम। ओके, इफ यू वांट टू स्टोर, और आपको अगेन और एक कंट्रोल का डेटा स्टोर करवाना, तो अगेन आप क्या लिखोगे, प्लस साइन करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉट करोगे, एम परसेंट करके अगेन एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, उसके सामने अगेन एक कंट्रोल का नेम लिखोगे। तो जितना आपको कंट्रोल का डेटा स्टोर करवाना, यू कैन स्टोर यूजिंग दी क्वेरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे उन्होंने 2 फील्ड लिया है, ठीक है, हम लोग 3 फील्ड, पहले 2 फील्ड वी विल रन एंड देन फिर 3 फील्ड के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, तो दिस इज अ सिंटैक्स फॉर क्वेरी स्ट्रिंग, आपको ये सिंटैक्स याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर हाउ टू क्रिएट क्वेरी स्ट्रिंग। तो ये आप क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क से, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मतलब सेकंड पेज में वो जाएगा, ओके, सेकंड पेज में वो जाएगा, क्लियर, सेकंड पेज पे जाना चाहिए बटन पे क्लिक करने से। सो वी हैव रिटन द कोडिंग बटन्स 1 का क्लिक इवेंट में। चलो प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड देन सेकंड पेज के लोड इवेंट में आपको क्या लिखना है, पेज लोड इवेंट में उसको कॉल करवाना है, इसको क्वेरी स्ट्रिंग को कॉल करवाना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप करते। चलो, पहले हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं 1 पेज में, फिर उसको हम लोग कॉल करवाएंगे सेकंड पेज में। ओके, तो कुकीज का एग्जांपल है, दिस इज वेब फॉर्म 3 में क्या है देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या लिया था, वेब फॉर्म 3 में वेट एंटर नेम पासवर्ड, इसमें भी कुछ हमने स्टेट यूज स्टेट किया था, ओके, आई थिंक इसमें हमने यूज स्टेट किया था। बाकी जो रिमेनिंग पेजेस है वो हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। वेब फॉर्म 3 भी आई एम क्लोजिंग, वेब फॉर्म कुकीज भी क्लोज कर देती हूँ। कुकीज का भी क्लोज कर दिया। वेब फॉर्म 3 में व्यू स्टेट था ना, ये वेब यूजर कंट्रोल भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। वेब फॉर्म 1 में क्या है, लेट्स सी।
ओके, तो ये हम क्या लेने हैं, ठीक है चलो छोड़ दो इसको। नाउ वी आर टेकिंग द न्यू वेब फॉर्म। यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके ऐड ऐड वेब फॉर्म। यस, असाइनमेंट सबमिट करो। ओके, असाइनमेंट सबमिट करो, इट इज कंपल्सरी टू एवरी स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले ही बोला था। ओके, जिस संडे तक आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना, यू विल गेट द मार्क्स फॉर एवरी असाइनमेंट। ठीक है, वेब फॉर्म यहाँ पे हम लोग कौन सा एग्जांपल करें, क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, QUERY क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल, क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल। ओके ओके, चलो क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल पेज, वी हैव टेकन वन पेज क्वेरी स्ट्रिंग एग्जांपल। ठीक है, नाउ डिजाइन पे जाओ। ओके, डिजाइन पे यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ एंटर नेम। ओके, एंटर नेम, टेकिंग द वन टेक्स्ट बॉक्स। ओके, कंट्रोल्स मतलब क्या, ये टेक्स्ट बॉक्स लेबल ऑल आर द कंट्रोल्स। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यूज करते हैं यूजर से इनपुट करवाने के लिए। ओके ओके, दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। एंड पासवर्ड ले लेते हैं, बट पासवर्ड ठीक है चलो ले लेते हैं पासवर्ड, फिर आपको बताती हूँ व्हाट इज द इशू। ओके, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। बटन, ओके बटन पे क्लिक कर दिया, सबमिट। ओके, अभी क्या होना चाहिए, नाउ। ओके, नाउ व्हेन यूजर क्लिक ऑन सबमिट बटन ना, जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये जो यूजर जो टेक्स्ट बॉक्स में नेम एंड पासवर्ड डालेगा दैट विल बी स्टोर्ड। ओके, ये कंट्रोल्स का डेटा, ये दोनों कंट्रोल, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स 1, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स 2, ये दोनों कंट्रोल का डेटा जो है वो स्टोर हो जाना चाहिए क्वेरी स्ट्रिंग में। ओके, एंड सेकंड पेज पे क्या करना है हमको, ये जो एंटर नेम एंड पासवर्ड, जो भी यहाँ पे नेम एंड पासवर्ड यूजर विल एंटर ना, दैट विल बी डिस्प्ले ऑन द सेकंड पेज। ओके, तो ये सेकंड पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए। कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, सेकंड पेज पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड एक न्यू पेज ही ले लेते हैं। ओके, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो वी आर टेकिंग दी सेकंड एक वेब फॉर्म हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेब फॉर्म नेम देते, वेब फॉर्म 2 नहीं, शॉर्ट में कुछ देते हैं, QS। ओके, क्वेरी स्ट्रिंग करके मैंने QS दे दिया, तो हमको लिखने में इजी रहेगा। ओके, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये पेज में मैं कुछ टाइप कर रही हूँ, क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, डेटा retrieved here। ओके, यहाँ पे हम लोग एक लेबल लेते हैं इन दिस पेज में, क्योंकि जो हमारा डेटा जो है ना वो लेबल में डिस्प्ले होगा। कहाँ पे डिस्प्ले होगा, लेबल में। कैसे करवाना है बताती हूँ। ओके, एक लेबल ले लें, चलो दिस इज अवर मेन पेज क्वेरी स्ट्रिंग। ये इसमें जो हमने कंट्रोल्स लिया है, नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, वो स्टोर हो जाना चाहिए क्वेरी स्ट्रिंग पे। यानी QS करके एक पेज लिया है, वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। इतना ही हमको करना है, ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट इतना ही हमको करना है। तो इन बटन्स क्लिक इवेंट, इन बटन्स क्लिक इवेंट वी हैव टू क्रिएट हियर क्वेरी स्ट्रिंग। क्या क्रिएट करना है, क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट करना है। तो हाउ टू क्रिएट द क्वेरी स्ट्रिंग, क्या करते हैं हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग में, क्या लिखना है आपको, सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ओके, मतलब रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ओके, रीडायरेक्ट कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है हमको, कौन से पेज पे रीडायरेक्ट करना है, QS पेज में। कहाँ पे करना है, QS पेज में। ओके, तो राइट इन द इन्वर्टेड कॉट में लिखो
ये वाले पेज पे, ठीक है, सेकंड पेज पे, तो उसका नेम क्या दिया था मैंने, QS, ओके, QS डॉट ASPX, ओके, QS.ASPX पेज पे जाओ, ओके, देन अभी यहाँ से हमारा क्या होगा, क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होगा, क्या होगा, क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होगा। तो फॉर स्टार्टिंग द क्वेरी स्ट्रिंग यू हैव टू डू द क्वेश्चन मार्क, आपको क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क करना है, वेयर इज अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, ओके, नाउ यहाँ से हमारा क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, सेकंड QS पेज पे रीडायरेक्ट करो, एंड यहाँ पे हम लोग वी आर क्रिएटिंग द क्वेरी स्ट्रिंग हियर। तो हाउ टू क्रिएट क्वेरी स्ट्रिंग, तो आपको पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक है, देन कोई भी नेम आप दे दो, ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल का कोई भी नेम देते हो, तो हम लोग यहाँ पे नेम दे रहे NAME नेम, ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम दे दिया मैंने, नेम, ओके, नाउ नेम इक्वल्स टू, ओके, नेम इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉट कंप्लीट हो गया, प्लस प्लस, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्लस प्लस, तो ये नेम वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर हो जाना चाहिए, जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स में जो नेम डालेगा वो, तो यूजर कौन से टेक्स्ट बॉक्स में नेम डाल रहा है, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में, सी दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका डेटा हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये वी विल राइट टेक्स्ट बॉक्स 1, दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। नाउ नाउ अभी हमको क्या करना है, सेकंड कंट्रोल का डेटा स्टोर करना है, तो अगेन राइट इन द इन्वर्टेड कॉट में लिखो, ठीक है, एम्परसेंड, दिस इज सिंटेक्स, सिंटेक्स आपको याद रखना है, एम्परसेंड, ओके, वेरिएबल का नेम दे दो, तो हमने कोई भी आप दे सकते हो, ठीक है, तो पासवर्ड करके एक वेरिएबल का नेम दिया, ओके, इक्वल्स टू, सिंटेक्स याद रखो, ठीक है, सिंटेक्स इज इंपॉर्टेंट, ओके, देन प्लस करके ये वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर करवाना है, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, जो पासवर्ड यूजर डालेगा वो कौन से टेक्स्ट बॉक्स में डालेगा, सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स में, तो टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ओके, क्लोज द ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, ओके, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, सेकंड पेज पे जाओ, एंड ये पेज में जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो डेटा है वो स्टोर करवाओ नेम वेरिएबल में, एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो डेटा यूजर डालेगा वो स्टोर करवाओ PWD में, तो एम्परसेंड एंड कॉलम, दिस इज अ सिंटैक्स, ओके, दिस इज अ सिंटैक्स, ये क्या है, सिंटैक्स है, किसका सिंटैक्स है, फॉर क्रिएटिंग द क्वेरी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमने क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, तो जब व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ओके, व्हेन यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ये सबमिट बटन पे क्लिक करेगा यूजर, तो इसका जो डेटा है नेम एंड पासवर्ड वो क्वेरी स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस क्वेरी स्ट्रिंग का सिंटैक्स की वजह से, एंड कहाँ पे जाएगा, सेकंड पेज पे जाएगा, ओके, कहाँ पे जाएगा, सेकंड पेज में जाएगा, ओके, तो सेकंड पेज में जाएगा, क्वेरी स्ट्रिंग तो क्रिएट हो गया, बट ऑन द सेकंड पेज, ऑन द सेकंड पेज हमको क्या करना है, ये लेबल में जो डेटा स्टोर हुआ था नेम एंड पासवर्ड, वो क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है, सॉरी डिस्प्ले हो जाना चाहिए, जो स्टोर किया था वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए था। हाउ टू डिस्प्ले, कैसे डिस्प्ले करना है, सेकंड पेज के आपको कहाँ पे लिखना है, पेज इवेंट में, कहाँ पे लिखना है, पेज लोड इवेंट में, ओके, यू हैव टू राइट दी पेज लोड इवेंट, तो पेज लोड इवेंट में आप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लिया है, फर्स्ट नेम करके जो भी आपको वेरिएबल नेम लेना है, ओके, वेरिएबल ले लो, एंड वो वेरिएबल में क्वेरी स्ट्रिंग को रिटर्न करवाओ, तो हाउ टू रिटर्न, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, एंड वहाँ पे आपने जो फर्स्ट पेज में जो क्वेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम दिया था वो यहाँ पे आपको करना है, ओके, ऐसे क्वेरी स्ट्रिंग आपको रिटर्न करवाना है यूजिंग द रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, एंड जो वेरिएबल में आपने रिटर्न करवाया वो लेबल में डिस्प्ले करवा दो, वो लेबल में क्या करवा दो, डिस्प्ले करवा दो, तो आप सेम लेबल में भी करवा सकते हो, अलग लेबल में भी करवा सकते हो, तो उन्होंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही लेबल में करवाया, हम लोग अलग लेबल में करवाते हैं, बिकॉज हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड है ना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग, तो हम लोग यहाँ पे और एक लेबल ले लेते सेकंड पेज पे, यस स्टूडेंट, समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है, ना ये जो पेज है उसका हमको क्या करना है, कोड सेक्शन में जाना है, ओके, नाउ QS.CS का हमको यहाँ पे लिखना है पेज लोड इवेंट में, वी हैव टू राइट इन पेज लोड इवेंट, क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो क्वेरी स्ट्रिंग हमने जो बनाया था ये वाले पेज में जो डेटा स्टोर किया था उसको रिटर्न करवाना है सिंपली ये पेज में, तो बटन क्लिक होने से नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली जब रन होगा तो आना चाहिए, इसीलिए वी आर राइटिंग द कोड इन पेज
डॉट लोड इवेंट में, ओके पेज लोड इवेंट में वी आर राइटिंग कोड। एक वेरिएबल ले लो कोई भी, ओके स्ट्रिंग, बाय स्ट्रिंग बिकॉज हम लोग स्ट्रिंग ही स्टोर करवाते हैं, स्ट्रिंग करके वेरिएबल ले लो, नेम जो भी आपको लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेम ही लेना है, ओके स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, नाउ ये वेरिएबल में क्या होना चाहिए, जो क्वेरी स्ट्रिंग हमने बनाया था, ओके जो क्वेरी स्ट्रिंग हमने बनाया था वो क्वेरी स्ट्रिंग उसको कॉल करना है। तो व्हाट इज द सिंटैक्स, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, सी आ गया, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, ओपन करो स्क्वायर ब्रैकेट एंड राइट द क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, एक मिनट, हाँ राइट द क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। तो क्या नेम था, हमने फर्स्ट पेज में क्या नेम दिया था, कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, एनएमई लिया था, तो यहाँ पे भी हमको क्या लिखना है, NAME इन्वर्टेड कॉट कंप्लीट, ओके एंड सेमीकोलन, ओके सेम एक और वेरिएबल ले लो स्ट्रिंग, ओके कोई भी एक वेरिएबल ले लो, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ऐसा नहीं कि जो क्वेरी स्ट्रिंग में क्रिएट किया है वही लेना है, ठीक है, यू कैन हियर टेक एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, ओके मैम हाँ बोलो, मैम कौन सा यूनिट लिखना है मैम? हाँ वेट आई विल टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो, ओके एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेकंड जो हमने क्वेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया था पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी यहाँ पे यू हैव टू राइट, दिस इज इम्पोर्टेंट जरूर, पहले ये देखो बेटा, ठीक है आपको बताती हूँ मैं क्या करना है, ओके तो ये हमने जो क्वेरी स्ट्रिंग था, ओके क्वेरी स्ट्रिंग को कॉल कर दिया, कौन से वेरिएबल में, नेम एंड पासवर्ड। नाउ अभी हमने लेबल लिया है, ठीक है लेबल 1, तो लेबल 1 में जो लेबल 1 है ये पेज में, उसमें हमको डिस्प्ले करवाना है लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या करना है, क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है सॉरी ये जो वेरिएबल में है उसका हमको स्टोर करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेरिएबल नेम, ओके एंड लेबल 2 में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, पासवर्ड, जो लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ये पासवर्ड, ये वेरिएबल में जो क्वेरी स्ट्रिंग स्टोर हुआ था दैट यू कैन डिस्प्ले, ओके बस हो गया, ओके तो इन दी फर्स्ट पेज हमने क्वेरी स्ट्रिंग बनाया एंड सेकंड पेज में वो क्वेरी स्ट्रिंग का डेटा हम क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, कहाँ पे करवा रहे हैं, लेबल में करवा रहे हैं, ओके नाउ आई एम रनिंग दिस पेज, ठीक है ये पूरा सेव कर लेते हैं, नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इट विल बी सेव, ओके नाउ आई एम रनिंग दिस पेज, व्हिच पेज, क्वेरी स्ट्रिंग जहाँ पे हमने क्वेरी स्ट्रिंग बनाया था, ठीक है ये आई एम रनिंग, ये स्टूडेंट स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ये जावा में भी आपको है, ये सब्जेक्ट में भी है, ओके तो कंसेप्ट सेम है, स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स का कंसेप्ट सेम है, ओके ओनली थोड़ा सा सिंटेक्स आई थिंक डिफरेंट होगा, बाकी जो आप जावा में पढ़े वही चीज यहाँ पे कंसेप्ट वही है, स्टेट मैनेज करना मतलब क्या, पेज और कंट्रोल्स का डेटा स्टोर करके रखना, दैट इज कॉल्ड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स, ओके टू टाइप्स का स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक होता है, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड, तो हम लोग अभी जो यूज स्टेट cookies and now अभी हम लोग query string करें all at the client side state management techniques, why client side because that जो information जो है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्लाइंट साइड, ओके ब्राउजर में, क्लाइंट के ब्राउजर में इंफॉर्मेशन मतलब कंट्रोल्स का डेटा स्टोर हो रहा है, सो इट इज अ क्लाइंट साइड, सर्वर साइड मतलब क्या, जो डेटा होगा वो सर्वर में स्टोर होगा फॉर पर्टिकुलर यूजर के लिए, सर्वर में सर्वर के मेमोरी में यूजर क्रिएट करके वहाँ पे डेटा स्टोर होगा, ठीक है, तो दैट इज अ सर्वर साइड टेक्निक्स, तो आपको ये याद रखना है, सेशन एप्लीकेशन ऑल आर दी सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स, प्लीज रिजॉइन, ओके रिजॉइन करो फॉर आउटपुट के लिए, आउटपुट देखने के लिए रिजॉइन करो स्टूडेंट्स, ओके इसका आउटपुट देखो, रिजॉइन करो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 14 ना 13, रिजॉइन, प्लीज रिजॉइन, रिजॉइन करो, ओके वेट इट विल टेक 2 मिनट्स, ओके ये समझ में आ रहा है, यस और नो, क्या करें हम लोग स्टूडेंट्स, यस और नो,